तो लेट अस फर्स्ट सी कि एपी क्या सीरीज है। एपी सीरीज में तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जैसे सपोज अगर ये मेरा एपी सीरीज है 2 5 8 11 14, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अब कॉमन डिफरेंस कैसे पता करना है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, या कोई भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करो, तो तुमको 3 मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एपी, this is called increasing AP, but it is also possible that you have a decreasing AP, जैसे कि suppose 10 7 4 1 -2 and so on. So this is a decreasing AP, क्योंकि AP सीरीज में नंबर्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा अगेन सेकेंड टर्म को माइनस करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, second term minus first term. So here the common difference will be -3 and not 3. So in a decreasing GP, common difference will be negative, and that is where the sum number 1a comes. So question number 1a में था कि find the 40th term of the series 8 5 2 -1 and so on. तो यहाँ पे मेरा first term 8 है, 8 is the first term. Common difference is not 3. Common difference is 5 minus 8. So -3 is the common difference. Okay, so this is an error that some of you have made. So 40th term मेरे को निकालना है. I have to find the term number 40. तो उसका फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d, which is a means the first term, n means the term number that we have to find. So we have to find the 40 term. So n is 40 minus 1 into, now d को -3 लिखना है, तो इसलिए ब्रैकेट्स में लिखो. So this will be 8 plus 40 minus 1 39, and then into -3. So 39 into -3, which means तुम्हारा आएगा 8 plus 39 into -3 is 117 or -117, and तो ये हो गया 8 plus minus is -117, तो इसका आंसर होगा, प्लस माइनस करना है तो आंसर माइनस करके लिखो, यानी 109, सॉरी हाँ 109, एंड बड़े नंबर का साइन लगाओगे. सो वी हैव 117 इज लार्जर नंबर, इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सम नंबर 1 पार्ट ए. Okay, let us go to sum number 1 part B. 1 part B में again we will apply the same logic. हमें AP सीरीज दिया हुआ है इसमें, which is 0 1/4 1/2 3/4 and so on. We have to find the next 2 terms, यानी इसके बाद अगला 2 टर्म क्या आएगा. तो यहाँ पे मेरे को कॉमन डिफरेंस अगर पता चल जाए तो हम इसमें बस वो कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे. तो लाइक आई टोल्ड यू, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. So 1/4 minus 0, it will be 1/4 only. तो ये कॉमन डिफरेंस है. इसका मतलब है अगर हम 0 में 1/4 ऐड करें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा. 1/4 में फिर से 1/4 ऐड करें तो हाफ आ जाएगा. हाफ में 1/4 ऐड करें तो 3/4 आ जाएगा. तो इसका मतलब नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा? 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म मेरे को चाहिए. तो फिफ्थ टर्म होगा 3/4 में तुम ऐड करो 1/4. So if you take 4 LCM, so I will get 3 plus 1 4, so 1. So the next term will be 1.
and the sixth term is 1 में तुम 1/4 ऐड करो, so 1 plus 1/4 is actually 1/4 simply या एलसीएम लोगे तभी भी वही आएगा. इसको तुम फ्रैक्शन में लिख दो, 4 into 1, 4 plus 1, 5, 5/4. This is improper fraction. So answer is this and this. So my answer is 1 and 5/4. They will be the next two terms. Sum number 2, which is you have to use a distance formula. Question is find the distance between the points. Find the distance between the points 3, 2 and point Q, which is -4, 5. So I have to find the distance between these 2 points. So we will use the distance formula. Let us say ये P है, ये Q है, हमें P और Q के बीच का distance निकालना है, या in other words हमें PQ का line length निकालना है. तो distance formula use करेंगे हम PQ निकालने के लिए. तो PQ का length होगा, first write the formula, give a root, बड़ा सा root, then x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which means the difference of abscissa, ये जो abscissa है, जो first points है, इसका difference का square, and then plus जो second point है, जो y point है, इसको ordinate बोलते हैं, तो ordinate का या y point का difference का square. तो इसमें some of you have made error in calculation. Okay, x2 अगर हम इसको इस पॉइंट को मान लो x1 y1 ले लो, let us say this is first point, तो ये x1, y1 है. Second point can be x2, y2. तो सबसे पहले x2 minus x1, so which means -4 minus, don't forget to put this minus, and then this term 3, इसका whole square plus again y2 is 5 minus 2 का whole square. हाँ, अगर तुम इसको पहले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यू कैन डू दिस माइनस दिस ऑल्सो, रिजल्ट सेम आएगा. तो यहाँ पे होगा, याद रखो, दिस बिकम्स -7 बिकॉज ये -4 -3 है, -7 का होल स्क्वायर विल बी ओनली 49 प्लस 49 प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर विल बी 9. सो 49 प्लस 9, सो माय आंसर विल बी √58. क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जस्ट यहाँ पे यूनिट्स लिख दो, √58 यूनिट्स विल बी माय आंसर. You guys please check and उसको वापस से करो. 2 part B, I'm not doing the entire sum. I'm just showing you the how to do, and you will do it and show me. 2 part D में बोला that show that 4, 3. Show that there are 3 points 4, 3, 7, -1. मान लो ये 7, -1 है, और एक और पॉइंट है 9, 3. We have to show that these 3 points are actually vertices of an isosceles triangle. यानी these 3 points are the, इसको vertex बोलते हैं, A, B, C या P, Q, R. So these are these 3 points. ये एक ट्रायंगल का तो vertices है, तुम्हें प्रूफ करना ये isosceles triangle का vertices है. isosceles triangle का मतलब है 2 साइड इक्वल होंगे सिर्फ. तो तुमको क्या करना है इसमें, अगर हम लोग इसका नाम दे दें, ABC नाम दे दो, तो तुम लोग सबसे पहले AB निकालो, लाइक AB का लेंथ निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. AB का लेंथ निकालो, फिर BC का लेंथ निकालो अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड देन AC या CA का लेंथ निकालो अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. So 3 times you have to use distance formula here to find the length of AB, BC and CA. Now what you will find is that how can you prove that the triangle is isosceles? If you can come out with a result something like this, जैसे कि AB 20 है, BC 17 है और CA भी 20 है, something like this, which means out of these 3 sides, 2 sides will be equal. Any 2 sides can be equal. This and this can be equal, or this and this can be equal, or the last 2 can be equal. Any 2 sides will be equal and the third side will be unequal. तो ये तुमको शो करना. अगर ये दिखा देते हो, सपोज अगर ये रिजल्ट आता है, तो तुम लिखोगे कि since
since two sides are equal, third side is unequal, so the triangle is isosceles. Similarly, अगर हम लोग को equilateral proof करना हो, अगर किसी सम में you have to prove that the triangle is equilateral, तो in that case you will have to find the distance and तुम देखोगे कि तीनों सेम आएगा, मतलब ये 20 आएगा, ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा, तीनों सेम आएंगे. Then you can write that since the three sides are equal in length, so the triangle is equilateral. तो distance formula से करना है, देखो ये hard नहीं है ये. Okay, so you will do this. 3 part A हम skip कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सभी का हो गया था करेक्ट. अगर नहीं होगा तो मुझसे अलग से पूछ लेना. 3 part B में लिखा है, अब बलून इज 3 part B में सब कुछ तो बना हुआ ही है, एक फिगर बना हुआ है और यहाँ लिखा है कि ये सपोज ये एक बलून है और इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. तो ऑब्वियसली ये बलून है तो ये हाइट है बलून का, ठीक है, इसको हाइट बलून का बोलते हैं. और ये बलून का स्ट्रिंग है, यानी बलून का धागा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहेगा ऑलमोस्ट हमेशा. तो बलून का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है 200 मीटर एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ, ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड एंड वी हैव टू फाइंड the height of the balloon. So basically again in the hint it was given that you have to find this side, isko C ले लो, so you have to find BC. So this is the height of the balloon. तो तुम लिखोगे कि in right angled triangle ABC, हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लेके करेंगे. तो तुम इसका इस एंगल का tan sin या cos, either tan या sin या cos लोगे बेस्ड ऑन तुम्हें कौन सा साइड निकालना है और कौन सा साइड दिया हुआ है. सो नोट दिस कि इफ दिस इज 60 डिग्री एंड द ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, इसको x ले लो. इफ दिस इज 60 डिग्री द ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, जो कि हमें निकालना है. तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है एंड द साइड विच इज गिवन टू अस इज दिस साइड, द लॉन्गेस्ट साइड. दिस इज हाइपोटेन्यूज. This side is opposite to the right angle, that is why it is hypotenuse. And this is the base. हम लोग को बेस नहीं दिया हुआ है और निकालना भी नहीं है, तो बेस को इग्नोर करो. मतलब हम लोग 60 डिग्री का वो वाला रेशियो लेंगे which deals with perpendicular and hypotenuse. Now sin का फॉर्मूला क्या है, some people have, तो sin का फॉर्मूला में P और H आएगा, तो हम लोग sin का फॉर्मूला यूज करेंगे. So you will write down that sin 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse. इसका वैल्यू लिख लो, √3 is equal to perpendicular. In this sum, this is the perpendicular, so x by hypotenuse is this 200. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x into 1, पहले इसको लिख लो, x into 1 is x is equal to 200 into √3. So 200 √3. So ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये इतना मीटर, so this will be the length of the x, this will be the value of x. लेकिन यूजुअली इट इज रिकमेंडेड कि √3 का वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा या याद रखना पड़ेगा. तो √3 इज 1.732 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 200 into, हाँ दिस इज into √3, so 200 into and then √3 का वैल्यू 1.732. मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ 1732 को into 2 कर दो, सिर्फ 1732 को into 2 कर दो, तो तुम्हारा आएगा 34, 17 का डबल और 32 का डबल 64. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 0 लगा दो. तो पहले पॉइंट को भूल जाओ, इसको जस्ट 200 से मल्टीप्लाई करो. अब पॉइंट बैठाओ. अब यहाँ पे 1 2 3 3 प्लेसेस के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस के पहले पॉइंट बैठाओगे, यानी 1 2 3 4 के पहले पॉइंट बैठाओगे. तो मेरा आंसर आएगा एक्चुअली 346.400. so don't write 00, just write 346.4 and क्वेश्चन देखो मीटर में दिया हुआ है, so this much meter. so this is the, एक सेकंड कुछ रॉन्ग लग रहा है मेरे को, बिकॉज सॉरी मैंने वैल्यू गलत पुट किया ना, यहाँ पे √3/2 होगा, sin 60 √3/2 होगा.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आई विल गेट 2 and 2x, 2x आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 2, तो ये डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, बस यहाँ पे ये 2 नीचे चला जाएगा, सो x विल बी इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये 100 हो जा रहा है। तो ये तो और इजी हो गया। सो बेसिकली 2 और 200 कट गया, यू गॉट 100 इनटू दिस। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जस्ट तुम पॉइंट को 2 कदम शिफ्ट कर दो। सो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को 2 कदम शिफ्ट कर दो, 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट, 173.2 मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। 4 पार्ट ए प्रोबेबिलिटी का सम है। देयर आर 52 कार्ड्स। उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ जैक। तो पार्ट 1 में तुम्हें एक कार्ड ड्रॉ करना है और क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा या फिर जैक होगा। तो अब सोचो कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, किंग 4 होते हैं और जैक यानी जे वो भी 4 होते हैं। तो टोटल 8 कार्ड्स मेरा फेवरेबल कार्ड्स है। तो तुमको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट तुम जब एक कार्ड ड्रॉ करोगे तो वो इन दोनों में से कोई एक आएगा। मतलब तुम्हारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, नीचे तुम टोटल कार्ड्स या टोटल आउटकम्स लिखोगे और ऊपर तुम्हारा जो फेवरेबल कार्ड्स है, जो आना चाहिए जिससे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी सच हो, वो कितना है। तो इसका फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। सो देयर आर 8 कार्ड्स व्हिच आर इन आवर फेवर, आइदर अ किंग और अ जैक, यानी इन 8 कार्ड्स में से अगर कोई भी कार्ड आता है then it is a favorable card for us. So the favorable outcomes are 8 and the total outcomes 52. So this is the probability, this is the answer. Just reduce करके लिख दो। प्लीज याद रखो 52 को यूजुअली हम लोग 4 से या 2 से काटेंगे, तो 4 से स्ट्रेट अवे काट दो तो आएगा 2, 4 से रिड्यूस करो और नीचे भी 13। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 में बोला जा रहा है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, यानी वो किंग और क्वीन में से कुछ भी नहीं है, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। अब तुम सोचो कि किंग टोटल में 4 पीस है, क्वीन भी 4 पीस है, तो ये दोनों नहीं आना चाहिए। मैंने द कार्ड शुड नाइदर बी अ किंग नॉर अ क्वीन, तो दीज आर अनफेवरेबल आउटकम्स। सो माय फेवरेबल आउटकम्स और अदर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो मेरे लिए फेवरेबल है, जो कार्ड हम लोग डिजायर कर रहे हैं, वो है ऑल द कार्ड्स एक्सेप्ट फॉर किंग एंड क्वीन। किंग एंड क्वीन नहीं आना चाहिए, यानी किंग और क्वीन को छोड़ के बाकी जितने भी कार्ड्स हैं दे बिकम द फेवरेबल कार्ड्स। तो टोटल आई टोल्ड यू, टोटल वी हैव 52 कार्ड्स और इन दोनों को निकाल दो, तो ये 4 + 4 8 को निकाल दो। सो द फेवरेबल आउटकम्स विल बी 52 - 8 which is 44. So my probability of the required event will be favorable outcomes, formula लिख दे रहे हम, favorable outcomes by total outcomes, favorable outcomes by total outcomes, which will be equal to favorable outcomes is 44 by 52. अगेन इसको 4 से डिवाइड करने का कोशिश करना, पहले 4 से जाएगा ये 11 4 = 44 by 13. So this will be the answer. The last sum is sum number 5. Which one is greater? एक है, अच्छा ये होता है 6√15, ये तुम लोग को नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट गिवन टू यू। तुम लोग को जो दिया हुआ है वो है 15 के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे 6 बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड 6th रूट। इससे स्क्वायर रूट होता है, सपोज ये होता है स्क्वायर रूट, इसका आंसर 3 होगा। ये है क्यूब रूट, जिसका आंसर भी 3 है, तो ये है 6th रूट। तो 6th रूट ऑफ 15 को कंपेयर करना है विथ 4th रूट ऑफ 12। 6th रूट ऑफ 15 को कंपेयर करना है विथ 4th रूट ऑफ 12।
तो ये सबसे पहले तुम कंपेयर करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, सबसे पहले यू विल राइट द फर्स्ट स्टेप विच इज अच्छा, अर्लियर आई टोल्ड यू जब स्क्वायर रूट लिखते हो किसी नंबर का तो इंडिसेस फॉर्म में इसका मतलब होता है 25 का पावर 1/2, हाफ। अगर कभी क्यूब रूट लिखोगे तो क्यूब रूट को इंडेसिस फॉर्म में लिखा जाएगा एज 27 का पावर 1/3। अगर किसी नंबर का तुमको फिफ्थ रूट लिखना है तो फिफ्थ रूट को लिखने के लिए वो नंबर लिखो और उसका पावर 1/5। सिमिलरली यहाँ पे 15 का सिक्स्थ रूट निकालना है तो इसको लिखोगे 15 का पावर 1/6 और इसको लिख लो 12 का पावर 1/4। अभी यहाँ पे पावर्स भी अलग अलग हैं और बेस भी अलग अलग है, देयरफॉर वी कैनॉट कंपेयर कि कौन छोटा कौन बड़ा है। सो व्हाट यू विल डू इज दैट वी विल ट्राई टू ब्रिंग ईदर द पावर को सेम करना होगा या बेस को सेम करना होगा या समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग एलसीएम लेंगे पहले 1/6 और 1/4 का या बेसिकली 6 और 4 का। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 है, 12 इज द एलसीएम, राइट। तो एक काम करो, जो इसको करने का दो तरीका है। जो इजी तरीका होगा वो ये होगा कि तुम बोथ साइड्स का होल पावर 12 कर लो। जैसे होल स्क्वायर करते हो या होल क्यूब करते हो तो बोथ साइड्स का होल पावर 12 कर लो, बोथ साइड्स का करना। तो बोथ साइड्स का होल पावर 12 कर लो, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। मेक श्योर कि यहाँ जो करो यहाँ वही करोगे। ये करने से तुम्हारा आएगा 15 का पावर। अच्छा, अब पावर और पावर अगर हो, पावर का पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होगा, सो इट बिकम्स 1/6 इंटू 12, विच मीन्स 1/6 को इंटू 12 करोगे, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 12 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी ये तुम्हारा होगा 15 स्क्वायर। और यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू 12, 4 और 12 कट जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो आएगा 12 का क्यूब। अब तुम देख लो 15 स्क्वायर होता है 225 और 12 का क्यूब ज्यादा बड़ा होता है, बिकॉज 12 इंटू 12 इज 12, ये 3 बार करना है। 12 12 जा 144 और 144 को अगर इंटू 12 करना हो तो ऑब्वियसली वो 1000 से भी ज्यादा आएगा। फिर भी करके देख लो, ये तुम्हारा आ रहा है 288, 144 इंटू 2, फिर क्रॉस दो 144 इंटू 1, so I will get 8 plus 4 12, 2 carry 1, 4 plus 6 7 1 1728 I think आएगा। तो 1728 इसका मतलब है क्लियरली this number is the winner। so इसका मतलब है this number is greater than this और this 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 is greater than this। तो we have to compare these two, तो तुम लिखोगे this is greater than this, तो लास्ट में लिखो therefore 12 का फोर्थ रूट is greater than का ये साइन बनाओ, 15 का सिक्स्थ रूट। Okay, so this is how you have to do. Please do all the sums and send me again.